دنیا کے آخر کا نشان کیا ہوگا؟ یہ باتیں کب ہوں گی؟ تو کب آئے گا؟ And what are the signs؟ نشان کیا ہوں گے؟ اور یہ سوال آج بھی مسیحوں کے ذہنوں میں دندناتا ہے، کیونکہ انسان اس تجسس سے بھرا ہوا ہے۔ What are the signs؟ نشان کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں؟ ہم کیسے سمجھیں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے؟ What are the signs؟ خدا ان کے باتوں کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر اس کی خاص آمین۔ آئیے اس پل کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ ہاللویا جیسس۔ زندہ مہربان آسمانی باپ یسوع جی، دل کی گہرائیوں سے خدا ان شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس وقت کے لیے، اس موقع کے لیے۔ خداوند آپ نے ہم سبوں کو یہ فضل بخشا کہ ہم سب دور و نزدیک سے خداوند آپ کے تخت کے سامنے حاضر ہیں۔ خداوند یسوع جی، جیسا کہ آپ کا کلام فرماتا ہے کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ آپ کے لوگ، آپ کا چرچ، آپ کی کلیسیا ان باتوں کو دیکھے، سمجھے اور جانے کہ نشان کیا ہے۔ What are the signs؟ پاک روح جی منت کرتے ہیں آج اپنے کلام کی قدرت کے وسیلہ سے دل کی آنکھوں کو روشن کیجیے خداوند یسوع جی، تاکہ ہم کلام کی ان عمیق باتوں کو جان سکیں، یسوع کے نام میں آمین۔ متی 24 باب اور اس کی 3 آیت۔ This is the big question۔ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ نہ صرف مسیحی لوگ، نہ صرف چرچ، بلکہ دنیا اس بات کے تجسس میں ہے۔ What are the signs؟ دنیا کا انت کب ہوگا اور یہ کس طرح سے ہوگا؟ اور مسیحی آج یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مسیحیہ کے آنے کا وقت کیا ہوگا۔ یہ سوال صرف شاگردوں کے لیے نہیں، یہ آج دور حاضر کی کلیسیا بھی یہ سوال کرتی ہے۔ تو پھر سوال کو اپنے سامنے رکھیے، What are the signs؟ نشان کیا ہے؟ اور اسی سوال کا جواب جناب مسیح نے اسی باب کی 14ویں آیت کے اندر دے دیا، جو کہ سب سے پہلا نشان 14ویں آیت کے اندر۔ یہاں پہ دیکھیے خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے، اور بادشاہی اور اس خوشخبری کی منادی تمام دنیا میں ہوگی تاکہ سب قوموں کے لیے گواہی ہو، اور تب خاتمہ ہوگا۔ This is the sign۔ ارے یہ نشان ہے جب خوشخبری کا پیغام تمام دنیا میں پھیل جائے گا، جب دنیا کے کونے کونے تک ہر ایک جان جائے گی Who is Jesus؟ کون ہے مسیح؟ کیسا ہے یہ کفارہ؟ کیسا تھا یہ فدیہ؟ What is the blood of lamb؟ برے کا لہو کیا ہے؟ جب یہ باتیں، جب یہ شہادت، جب یہ گواہی دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گی، This is the sign کہ دنیا کا اب خاتمہ ہوگا۔ جب جناب مسیح نے یہ باتیں اپنے شاگردوں سے کہی، اپنے حواریوں سے کہی، یہ باتیں سمجھنا مشکل تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے دنیا کے کونے کونے تک، ہر بشر تک انجیل کی منادی، یسوع کی گواہی، اس کے کاموں کی باتیں اور شہادتیں یہ کیسے پہنچ سکتی ہیں؟ اس وقت ان کے لیے شاید یہ سمجھنا بڑا مشکل تھا، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی، اور 17ویں صدی کے بعد وقت کے پرندے نے ایسی اڑان بھری کہ پوری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ آج آسمان پر صرف پرندے نہیں اڑتے، ارے انسان بھی اڑتے ہیں اور میلوں کا سفر طے کرتے باحفاظت اپنی منزلوں پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آج رات لیٹو، نیلے آسمان پر آپ کو چمکتے ہوئے صرف ستارے نظر نہیں آئیں گے، راکٹ بھی ہے، جہاز بھی ہے، سیٹلائٹس بھی ہے جن کی روشنیاں آج بھی زمین سے ٹکراتی ہیں۔ The world has changed۔ دنیا بدل چکی ہے، اور اس بدلتی دنیا کو دیکھتے ہوئے آج ان باتوں کو سمجھنا بالکل مشکل نہیں۔ This is not impossible۔ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ آج جو باتیں شاگرد نہیں سمجھ پائے، وہ آج باتیں ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ آج جس دور میں، جس دور حاضر سے ہم گزر رہے ہیں، ارے یہاں پر سیٹلائٹس ہیں، یہاں پہ انٹرنیٹ ہے، ٹویٹرز ہیں،
फेस बुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, so many channels। अरे कई चैनल्स हैं जिनके वसीला से, जिनके जरिया से दुनिया के कोने कोने तक आज मसीह का नाम पहुंच रहा है, उसके नाम की गवाही हो रही है। अरे आज दुनिया की कुल आबादी का ग्राफ निकाल के देख लीजिए, ये मेरी कोई अपनी की आसराई नहीं है, वर्ल्ड पॉपुलेशन का ग्राफ निकाल के देख लीजिए। सन 2010 के अंदर दुनिया की कुल आबादी में से 2.0 बिलियन कहा जाता था ये मसीही हैं, और तब भी कहा जाता था कि मसीह लोग, ये कौम, ये मजहब दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि 2.0 बिलियन आबादी सिर्फ मसीहों की है। सन 2020 के अंदर जब फिर से आंकड़े निकाले गए, फिर से कैलकुलेशंस की गई, तो नतीजा ये निकला कि दुनिया की कुल आबादी जो कि 8 बिलियन है, उस 8 बिलियन में से मसीही लोग 2.3 बिलियन हैं। और हिसाब लगाने वाले आज भी ये कहते हैं कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब दीन मसीहत है, और ये तादाद वक्त के साथ बढ़ती चली जा रही है। ये तादाद जो जो वक्त गुजरता जाएगा ये बढ़ती चली जाएगी, ये फिगर रुकने वाला नहीं है। अरे आज जब ये बातें हमारी आंखों से गुजरती हैं, दिस इज द साइन। अरे ये बातें दुनिया को खौफजदा करती हैं, बट दिस इज द गुड न्यूज। अरे चर्च के लिए, मेरे लिए, आपके लिए ये खुशी की खबर है, क्योंकि ये अब वो वक्त है, ये अब वो साइन है चर्च के लिए, कलीसिया के लिए, कि अब वो तैयारी कर ले। अरे अब वो अपने रूहानी परों को झाड़ के दुनिया की गर्द उतारे, क्योंकि अब मेरे और आपकी आखिरी परवाज़ का वक्त आ पहुंचा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा उनके लिए जोरदार सवाल ये है, व्हाट आर द साइंस? पतरस का खत खोलिए, उसका 3रा बाब। पतरस हमें बताता है व्हाट इज द साइन। वो कहता है कि दुनिया के आखिर में ठट्ठा करने वाले उठ खड़े होंगे। ये ठट्ठा करने वाले उठेंगे, पूछेंगे को तुम्हारा मसीहा कहां है? वेयर इज जीसस? और उसके आने का वो वादा कहां गया? पतरस कहता है जब ऐसे लोग तुम्हें अपने इर्द गिर्द नजर आ जाए तो समझो कि अब वक्त करीब है, समझ जाओ, दिस इज द साइन। अरे यही वो वक्त है कि अब आज नहीं तो कल, पल दो पल में, एक झपक्की के अंदर मेरा और आपका मुकाम बदलने वाला है। आज फेसबुक, व्हाट्सएप या और कोई भी चैनल खंगाल के देख लीजिए, आज आपको गलियों में, चौराहों पर बथेरे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो हाथों में रसाले, किताबें और बाइबल्स लेके आज सवाल करते फिरते हैं, वेयर इज जीसस? अरे ये वो लोग हैं जो मसीहा की बाबत इसलिए बातें नहीं करते कि उसकी तलाश में है, बल्कि ये वो गैर मसीही हैं जो मसीहों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मसीहा कौन है। इन्होंने अपने लिए अपनी तरह का एक मन घड़त मसीहा बना रखा है। ये उस मसीहा का फिर बाइबल के मसीहा से कंपैरिजन करते और आपको साबित करने की कोशिश करते हैं, यू आर रॉन्ग। अरे ये वो लोग हैं जो ठट्ठा करते और ताने देते और तंज करते हैं। इनको कोई गर्ज नहीं कि पारसी मजहब के पहली कैनन में क्या लिखा है, या भगवत गीता क्या कहती है, या चाइनीज मजहब का मशहूर फिलॉसफर कन्फ्यूशियस की तालीम क्या है। अरे दुनिया के मुजाहिद और उनके मजहबी लीडर क्या कहते हैं, इन्हें उनसे कोई सरोकार नहीं। अगर सवाल है, अगर तंज है, अगर तनकीद है, तो फकत एक जात पर जिसका नाम जनाब मसीह है। अरे उस जात पर तंज और तनकीद करने का सबब यह है, फकत वही एक जात है जिसने दुनिया को मुजरम ठहराया और दुनिया के सरदार को कलवरी पर शिकस्त दे दी। अरे चूंकि उसने दुनिया को मुजरम ठहराया, इसलिए अब दुनिया उसके पीछे है। अरे दुनिया उसके भी पीछे है और उसके मानने वालों के भी पीछे है। जब इस तरह की बातें, जब इस तरह के काम और इस तरह के लोग आपको अपने गिरदोनवा में दिखाई दे, दिस इज द साइन। अरे ये निशान है दुनिया के अंत का, दुनिया के खात्मे का। अब वक्त ज्यादा दूर नहीं।
अब वक्त ज्यादा दूर नहीं जब एक दिन आसमान खुल जाएगा और देखते ही देखते चर्च अपना मुकाम बदल लेगा। अरे ये लोग हाथों में यूं ही रिसाले किताबचे लेके गलियों कूचों और चौराहों में यही सवाल करते रह जाएंगे, क्योंकि ये मसीहा की तलाश में नहीं, ये तलाश नहीं करते, ये तनकीद करते हैं, नहीं मिलेगा, मसीहा नहीं मिलेगा। You can't find Jesus। अरे मसीहा की तलाश नहीं करते, मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इब्रानियों का खत हमें तकवीयत देता है। खोलिए इब्रानियों 9 बाब उसकी 28वीं आयत, खुदावंद का कलाम कहता है, अरे वो उनको दिखाई देगा जो उसकी तलाश करते हैं। चर्च उसका मुतलाशी है, चर्च उसका इंतजार करता है। एक दिन आसमान खुल जाएगा और ये चर्च को जब वो बादलों पे नजर आएगा, ये चर्च हवा में उठ के उसका इस्तकबाल करेगी। ये सवाल करने वाले, तनकीद करने वाले हाथों में किताबें लिए सर खुजाए चौकों चौराहों में खड़े के खड़े रह जाएंगे और ये चर्च पांच झपकते ही बादलों के पार दूर आसमानों में निकल जाएगा। हालेलुया। खुदावंद का बंदा पतरस कहता है, दिस इज द साइन। अरे यही निशान है जब तुम्हें इर्द गिर्द मसीह की बाबत तनकीद करने वाले, सवाल करने वाले बहुत ज्यादा तादाद में नजर आ जाए, तो समझ जाओ अब वक्त करीब है। खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है? सवाल यह है, व्हाट इज द साइन? उसके आने का निशान क्या है? मसीह कैसे जाने? मसीह लोग कैसे तकवीयत पाए? यस, टाइम इज नियर। अरे अब तो चर्च वक्त की उस कगार पे खड़ा है जहां पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। नोबडी कैन नो। हाँ, मगर चर्च ही है जिसकी बाबत कहा गया, तुम तारीकी में नहीं, तुम नूर के फर्जंद हो। खुदा उनका कलाम फरमाता है कि वो एक दिन चोर की तरह आ जाएगा, तो चोर की तरह वो दुनिया के लिए आएगा, चर्च के लिए नहीं, क्योंकि चर्च उसके आने की बाबत जानती है। नहीं जानती तो ये दुनिया गाफिल है, ये दुनिया अनजान है, मगर कलीसिया खुदावंद की दुल्हन, उसके लोग अच्छी तरह जानते हैं। व्हाट आर द साइंस? उसके आने का निशान क्या होगा? हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए सवाल ये है, व्हाट आर द साइंस? निशान क्या है? सबसे बड़ा निशान इस्राएल की बहाली और खुशहाली, सबसे बड़ा निशान है ये। ईसाया नबी का सहीफा उसका 66वां बाब नबी फरमाता है, क्या मुमकिन है, क्या किसी ने सुना या किसी ने देखा, एक ही दिन में कोई कौम पैदा हो सकती है? ये सवाल था ईसाया क्या, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये क्यों कर मुमकिन है? क्या कोई कौम एक ही दिन में पैदा हो सकती है? नॉट पॉसिबल। दुनिया के सामने ये सवाल था, लेकिन इस सवाल का जवाब मिला सन 1948 के अंदर, और हिजकिय्याह नबी की मार्फत की गई नबूवत तकमील को पहुंची। खुदावंद ने अपने बंदा हिजकिय्याह से कहा, ए आदम ज़ात, इन हड्डियों पर नबूवत कर। कहता है, इन हड्डियों पर नबूवत कर, क्या ये फिर से जिंदा हो सकती है? हिजकिय्याह कहता है, खुदावंद तो ही जानता है। खुदावंद फरमाता तो फिर सुन, अरे ये हड्डियां बनी इस्राएल कौम है। देखते ही देखते मुर्दा हड्डियों से जुड़ गई और उन पे गोश्त आया और उनकी नथनों में जिंदगी का दम बहाल हो गया। हिजकिय्याह नबी की मार्फत की गई नबूवत सन 1948 में अपने तकमील को पहुंची। एक ऐसी कौम जो दुनिया में तितर बितर थी, जिनका कोई मकाम, कोई वजूद बाकी न था, उन मुर्दा हड्डियों के अंदर फिर से उसने जिंदगी का दम फूंक दिया। एक ही दिन में एक पूरी की पूरी कौम वजूद में आ गई। जिस दिन इस कौम की बहाली हुई, उस दिन से खुदावंद का टाइम क्लॉक स्टार्ट हो गया। टाइम इज वेरी नियर। चर्च को तैयारी की जरूरत है, तैयार रहने की जरूरत है। टाइम इज नियर। बनी इस्राएल कौम की बहाली और खुशहाली इस बात का सबूत है, जीसस कमिंग वेरी सून। सन 1948 में इस कौम की बहाली हुई। आप हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इस्राएल की जितनी जंगें इस कौम ने लड़ी, आज कुर्रा अर्ज पर इतनी जंगें किसी और कौम ने नहीं देखी। 1948 में इस कौम की बहाली हुई। 1950 में अरब इस्राएल की जंग छिड़ गई। अरब इस्राएल जंग से रिहाई पाई। 1967 में
6 مسلم کنٹریز نے مل کر اسرائیل پہ حملہ بولا لیکن اسرائیل فاتح ہوا. سن 1970 کے اندر ایجپشن ریپبلک نے پھر سے حملہ کر دیا, اس سے نجات پائی. سن 1973 میں لبنان نے حملہ کر دیا, اس سے باہر نکلے. سن 1982 کے اندر سیریا نے اٹیک کر دیا, سیریا کے اٹیک سے نکلے. 2001 کے اندر حزب اللہ نے حملہ کر دیا, حزب اللہ سے نکلے. سن 2009 کے اندر غازہ وار سٹارٹ ہو گئی, کانسٹنٹ وارز. مسلسل یہ قوم حالت جنگ میں رہی جب سے ان کی بحالی ہوئی. اور اتنی جنگیں کسی قوم کے ساتھ لڑی جائے تو نقشے کے اوپر سے نام و نشان مٹ جاتے ہیں, لیکن اس قوم کا نام بھی باقی, نشان بھی باقی, اور یہ قوم بھی خوشحال ہے. یہ نام اور نشان کیوں کر باقی رہا؟ کیونکہ خداوند اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا, کہ خداوند اسرائیل تیرا محافظ ہے. بجاڑیا کہ تو پھر کھل کے بجاؤ. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. اسرائیل کا محافظ خداوند ہے. blessed nation, مبارک لوگ, blessed people, مبارک قوم. اس قوم نے بنی نوع انسان کے لیے بہت کچھ کیا ہے, اس قوم نے دنیا کو بہت کچھ دیا ہے. جائیے انٹرنیٹ پہ گوگل کھول کے دیکھ لیجئے, ایک لمبی فہرست سامنے آ جائے گی. موٹی موٹی چیزوں کی بات کریں تو اڈیاں جیباں جو USB ہونی ہے. کس نے انوینٹ کی؟ اسرائیل نے. آج ہم اپنے گھروں میں بیٹھے سولر پینلز کی باتیں کرتے ہیں, اسرائیل میں بنا. آج ہم دل کے مریضوں کے لیے سٹنٹس کی باتیں کرتے ہیں, اسرائیل نے انوینٹ کیا. آج جب ہم گھروں میں بیٹھے کہیں پہ جانا ہمارے لیے مشکل نہیں, ہمارے پاس GPS ایپس ہیں, ہم بھٹک نہیں سکتے. یہ ایپ سب سے پہلے اسرائیل کے اندر اپنے لوکل ٹیکسی ڈرائیورز کے لیے بنایا گیا تھا. نیشنل لیول پہ جب یہ ایپ کامیاب ہو گیا, انٹرنیشنل لیول پہ اس کو انٹروڈیوس کروایا گیا. یہ موٹی موٹی سی مثالیں ہیں. اور سب سے بڑی انوینشن, آج کمپیوٹرائز دور ہے, کمپیوٹر کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا. اسرائیل نے ایک ایسی چیز انوینٹ کر دی, مدر بورڈ. یاسر جانتا واٹ از مدر بورڈ؟ مدر بورڈ کے اندر لگنے والی چپ جسے انٹل پروسیسرز کہتے ہیں, کس نے بنایا؟ اسرائیل نے. اور اسرائیل نے بنی نوع انسان کو بہت کچھ دیا, اسرائیل نے بنی نوع انسان کے لیے بہت کچھ کیا. ہمیں صحیفے مل گئے, ہمیں کتابیں مل گئی, ہمیں انبیاء مل گئے, ہمیں رسول مل گئے, اور سب سے بڑھ کر اس قوم نے ہمیں یسوع بھی دے دیا. ہاللیلویا, ہاللیلویا, ہاللیلویا. This is the blessed nation. ارے یہ مبارک قوم ہے, اور جس نے بنی اسرائیل قوم سے ہاتھ ملایا, خدا نے اس قوم پر آسمان کو کھول دیا. آج جیسے کہنے ہیں امریکہ بلیسڈ ہے, امریکہ سپر پاور ہے. why؟ ارے کیوں وہ بلیس ہے, کیوں وہ سپر پاور ہے؟ کیونکہ انہوں نے اسرائیل کو گلے لگایا. یہ آج کی بات نہیں, تاریخ اس بات کی شاہد ہے. امریکہ کی نے ڈسکور کی تاثیر. امریکہ کی سرزمین پہ پہلا شخص پاؤں رکھنے والا کون؟ یس, لیکن یہ آدھی معلومات ہے. میں آپ کو وہ ہسٹری بتاؤں گا جو گرامر سکولز میں نہیں پڑھائی جاتی ہے. ہویا کسی 14ویں صدی دے وچ, یا سہیل بھائی, اسپین ایزیبل کوئین کے دور حکومت میں, فرڈیننڈ کنگ تھا تب, ان کے دور حکومت میں اسرائیل کی گردن پہ تلوار رکھ دی گئی تھی یہودیوں کی. حکم یہ تھا, یا مذہب بدل لو تو یا یہ ملک چھوڑ دو. انہوں نے بولا ہم مذہب نہیں بدلیں گے, ہم ملک چھوڑ دیں گے. لیکن سوال یہ تھا, ملک چھوڑ کے جانا کہاں پہ ہے؟ کولمبس یہ مسالوں کی تجارت کرتا تھا اور پہاڑیوں کا سفر طے کرتے مختلف قوموں, مختلف جزیروں اور قبیلوں میں جاتا, وہاں پر جا کے مسالے بیچا کرتا تھا. کولمبس سے درخواست کی گئی کہ اس قوم کو, اس قوم کے لوگوں کو کہیں پہ لے جا, دنیا کے کسی خطے میں لے جا, لیکن یہ اسپین میں نظر نہ آئے. اگر کوئی اسپین میں نظر آیا تو جان سے مارا جائے گا. سوال یہ تھا کہ لے تو جائیں گے,
लेकिन इस समुद्री सफर का खर्चा कौन उठाएगा? 2 यहूदी ताजर उठे, एक का नाम लुइस डी टॉरस था और दूसरे का नाम गैब्रियल सेंशल था। इन दोनों ने हिम्मत पकड़ी कि जो भी खर्चा आएगा हम दे करें, लेकिन हमारी कौम के लोगों को कहीं बाहर हिफाजत छोड़ देना। पानियों पे सफर करते, दंदनाते फिरते, गुमराह होते होते एक ऐसी सरजमीन पे जा पहुंचे जिस सरजमीन का नाम अमेरिका था। उस सरजमीन पे पांव रखने वाला सबसे पहला कोलंबस नहीं, बल्कि इसके साथ यहूदी कौम के लोग भी थे। अरे वो जो दुनिया के रद्द किए हुए, दुनिया में ठोकर खाए हुए थे, दुनिया ने रद्द कर दिया, अमेरिका ने उनको गले लगा लिया, उनको पनाह दे दी। और जब उन्होंने पनाह दे दी, खुदा ने अपना वादा याद किया। खुदा ने अब्राहम से वादा किया था, जो तेरी नस्ल को बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, जो इन पे लानत करेगा मैं उन पे लानत करूंगा। अमेरिका ने गले लगाया, खुदा ने अमेरिका पे आसमान खोल दिया। अरे खुदा ने उस कौम को बरकतों से भर दिया, क्योंकि वो अपने वादों का सच्चा खुदावंद है। आज उस कौम पर लानत करने वाले कभी कामयाब ना होंगे। दुनिया के अंत तक, दुनिया के आखिर तक ये कभी दुनिया में हुक्मरान साबित ना होंगे, क्योंकि ये खुदावंद के वादों को नहीं जानते। हम जब इन सारी बातों पे गौर करते हैं, दिस इज द विजिबल साइन, दिस इज द साइन। चर्च के लिए ये निशान है। सवाल ये था, तेरे आने का वक्त क्या होगा? तो ये उसके आने का वक्त है, उस कौम की बहाली और उस कौम की खुशहाली। दे आर द रूलर्स, ये रूल करने वाले हैं, ये दुनिया को लेके चलने वाले हैं। आमीन। व्हाट इज द फोर्थ साइन? टाइम होता जा रहा है, बातें इतनी मेरे दिल के अंदर करने के लिए, लेकिन जितना मैं शेयर कर सकूंगा मैं आपसे करूंगा। व्हाट इज द साइन? हिजकिय्याल की मार्फत खुदावंद ने कलाम कर दिया। जब हम हिजकिय्याल 38वां बाब खोलते हैं, 15वीं और 16वीं आयत, खुदावंद का कलाम फरमाता है, आखिर जमाना में, एंड टाइम्स, ये आज की बात की जा रही कि हम लोग आखिर जमाना के मुसाफिर हैं। ये आज की बात की जा रही है और खुदावंद ने नबी की मार्फत कलाम किया। आखिर जमाना में शुमाल के बादशाह आएंगे और मेरे लोगों को घेर लेंगे। ये शुमाल के बादशाह कौन है? उस चैप्टर को पढ़िए, वहां पर कौमों के नाम है। वहां पे मस्क है, मस्क आज का मौजूदा मॉस्को है। वहां पे तुबल है, तुबल आज का मौजूदा तुर्की है। वहां पे जुमर है, जुमर जर्मनी है। वहां पे रोश है, रोश रशिया है। और खुदावंद का कलाम कहता है शुमाल के बादशाह आएंगे और ये मेरी कौम को घेर लेंगे। लेकिन साथ ही खुदावंद ने एक और बात की, मैं इनके मुंह में आंकड़े डालकर इनको खींच के लाऊंगा। वो इनको खींच के लाएगा और फिर बर्बाद कर देगा, फिर हलाक कर देगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये क्यों आएंगे? ये इजराइल का सफर तय करने क्यों आएंगे? इजराइल पे हमला करने क्यों आएंगे? रशिया की हिस्ट्री है ये। आप रशिया की हिस्ट्री खोल के देख लीजिए। हमेशा रशिया कब्जा करता है जॉर्जिया पे, क्रेमिया पे, डोनेस्की पे, लुहांस्क पे और फिर रिसेंटली यूक्रेन पे। ये वो ममालिक हैं, ये कह लीजिए ये वो खित्ते हैं जो कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा होते थे और रशिया इनके अंदर सुपर पावर था। लेकिन एक वो वक्त आया कि सोवियत यूनियन जाती रही और वो इलाके, वो कौमें, वो मुल्क जो सोवियत यूनियन से जुदा हो गए, रशिया ने उनकी मर्जी से या जबरदस्ती से फिर से उनको ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। क्योंकि रशिया जब रूल करता था उसका एम्पायर बड़ा स्ट्रांग था। अब रशिया फिर से इन ममालिक को ऑक्यूपाई करता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और एक और सबसे बड़ी वजह, ऑयल, तेल आने वाले दिनों में अब
अब वो सबब बनेगा जिसकी वजह से जंगें होंगी, जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होंगी। खुदा उनका कलाम हमें ये सिखाता है। ये इस्राएल की तरफ एक करके ऐसे नहीं आएंगे, तेल का लालच इनको खींच के ले आएगा। चंद साल पहले की रिपोर्ट है, इस्राएल की सरजमीन में आज इतना तेल डिस्कवर हुआ, अगले 100 साल तक वो तेल कभी खत्म नहीं होगा। मतलब आज ऑयल इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ अरब कंट्रीज ने, इस्राएल ने भी जंप कर दिया है। अब जब इस्राएल ने जंप कर दिया, इस्राएल कहता है कि मैं दुनिया से अब तेल नहीं लूंगा, और जब वो दुनिया से तेल नहीं लेगा, अब वो यूरोप के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा है। अब जब यूरोप के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं, अरब कंट्रीज जो है वो इफेक्ट हो रही है, क्योंकि इकोनॉमी डिस्टर्ब हो रही है। उनके क्लाइंट्स, उनके प्रोजेक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता छूटते जा रहे हैं। जहां पर फलस्तीन को मुस्लिम ममालिक सपोर्ट करते थे खित्ते को लेके, अब फलस्तीन को सपोर्ट किया जाएगा तेल को लेके, क्योंकि वो दावा करेंगे ये जमीन हमारी, तेल पे भी हमारा हक बनता है। और दूसरे मुस्लिम ममालिक फलस्तीन की सपोर्ट के लिए सब मिलके आएंगे, और नबी की मार्फत जो हजारों साल पहले कलाम कर दिया गया, शुमाल के बादशाह मिलकर आएंगे और वो मेरी कौम का मुहासरा कर लेंगे। लेकिन खुदावंद साथ ये भी फरमाता है, ये आप नहीं आएंगे, और मैं इनके मुंह में आंकड़े डालकर इन्हें खींच के लाऊंगा। इनका लालच इन्हें इस इस्राएल की सरहदों में खींच लाएगा। लेकिन ये आएंगे तो जरूर, लेकिन ये वापस ना लौट पाएंगे, क्योंकि इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँगता है ना सोता है। इस्राएल का मुहाफिज इस्राएल के साथ है। हालेलुया। गुड न्यूज मेरे लिए और आपके लिए खुशी की खबर यह है, इससे पहले कि ये सब कुछ जमीन पे होता होगा, एक दिन बादलों के पार से नरसिंगे की आवाज कलीसिया के कानों को टकराएगी, और हम सब पलक झपकते ही बादलों के पार अपने मसीहा के साथ उसकी दावत अजीम में शामिल होंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये खुदावंद के लिए जोरदार यासर 7:45 हो गए ने। जानते जानते मैं आखिरी गल करांगा। नबी की मार्फत खुदावंद ने कलाम किया, आखिर जमाना में दानिश अफजू होगी, विजडम नॉलेज इंतहा को पहुंचेगा। वो जो मजहब के मुतलाशी है, वो जो मजहबी लोग हैं, वो मजहब में बहुत आगे निकल जाएंगे। जो दुनियादारी के लोग हैं, साइंस के लोग हैं, वो साइंस और दुनिया में बहुत आगे निकल जाएंगे, क्योंकि दानिश अफजू होगी। दानियल को खुदा उनका कलाम कहता है, दानियल इन बातों को लिख के इस किताब को बंद कर दे आखिर जमाना तक। तब वो किताब बंद कर दी गई, लेकिन अब हम जो आखिर जमाना के हैं, अब वो वक्त है कि हम इन किताबों को खोलें और जानें कि नबी की मार्फत खुदा उनका कलाम क्या फरमाता है। तो सुन लीजिए, खुदा उनका कलाम ये कहता है कि आखिर जमाना में दानिश अफजा होगी, विजडम नॉलेज, हिकमत और फहम अपने कमाल के सफर तय करता चला जाएगा। कई सौ साल पहले यशायाह नबी की मार्फत जो यशायाह ने विजन देखा, यशायाह ने इस विजन को देखा, वो देख के हैरान रह गया, दंग रह गया। खोलिए यशायाह 31 बाब, उसके अंदर खुदावंद का कलाम यशायाह पर नाज़िल हुआ। खुदावंद फरमाता है, मैं मंडलाते हुए परिंदे की मानत तेरी हमायत करूंगा, तुझे संभालूंगा और तुझे बचा लूंगा। कई सालों तक खुदावंद का यह कलाम इंसानी अकल को समझने से कासर था। मंडलाता हुआ परिंदा कैसे तहफ़्फ़ुज़ देता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? ये कैसे होगा? खुदावंद कैसे मंडलाते हुए परिंदे की तरह कौम को तहफ़्फ़ुज़ देगा? ये कैसे मुमकिन है? 19वीं सदी तक ये मुमकिन नहीं था, और ये बातें समझने से इंसान का असर था। लेकिन राइट ब्रदर्स ने जब 1903 के अंदर जहाज को इन्वेंट कर दिया, आहिस्ता आहिस्ता अकल के ताले खुलने शुरू हो गए। 1911 के अंदर जब इटली ने तुर्की पे हमला किया, तो पहली दफा जब जहाजों का इस्तेमाल हुआ, तो इंसान को ये समझ आ गई, ये मंडलाते हुए सरहदों पे परिंदे ये दर हकीकत परिंदे नहीं, अरे ये तो जंगी तैयारे हैं जो सरहदों की हिफाजत करते हैं। खुदावंद ने नबी की मार्फत कई साल पहले कलाम किया था, क्योंकि यशायाह ने आज तक जहाज देखे नहीं, और जब खुदावंद उसको विजन के अंदर जहाज दिखा रहा है, तो यशायाह लिख रहा है मंडलाते हुए परिंदे। खुदावंद सरहदों पे उसको F-16 दिखा रहा है। यशायाह को पता ही कोई नहीं F-16 क्यों कहते हैं, उसको पता ही नहीं जंगी तैयारे कौन से हैं। खुदावंद उसको जंगी जहाज दिखा रहा है जो सरहदों की हिफाजत करते हैं। लेकिन यशायाह कह रहा है ये मंडलाते हुए परिंदे हैं जो ऊपर से प्रोटेक्ट करते हैं।
लेकिन 1911 में ये बातें खुलनी शुरू हो गई, किस तरह से खुदावंद एक मंडलाते हुए परिंदे की तरह सरहदों की हिफाजत करेगा। वो कहता है मैं मंडलाते हुए परिंदे की तरह तेरी हिमायत करूंगा, तुझे बचाऊंगा और तुझे छुड़ाऊंगा। खुदावंद का कलाम खोलिए, कई सौ साल पहले नहूम की मार्फत खुदावंद ने कलाम किया। मेरे साथ आज इन आयात पर गौर कीजिए जाते जाते। नहूम नबी उसका दूसरा बाब, और देखिए तवज्जो से सुनिएगा, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। नहूम देखने की ड्याज है, ये नबूवत आपको बताएगी यू आर इन एंड टाइम्स, आप आखिर जमाना के मुसाफिर हो। नहूम 2 बाब उसकी चौथी आयत के अंदर लिखा है, रथ सड़कों पर तुंद ही से दौड़ते हैं और मैदान में बेतहाशा जाते हैं। ए नहूम विजन में खंडे है। विजन में उसने क्या देखा? वो देखा सड़कों के ऊपर रथ फुल स्पीड, हाई स्पीड से भाग रहे हैं। नहूम ने अपनी जिंदगी में गधा, घोड़ा, ऊंट और रथ से अलावा कोई चीज देखी नहीं थी। खुदावंद उसको हाई स्पीड कार्स दिखा रहा है। खुदावंद और लैंड क्रूजर बखान दिया से आगे लिखा हुआ है, वो मछलों की मानिंद चमकते हैं और बिजली की तरह कूद जाते हैं। विद हाई स्पीड, बिजली की तरह पलक झपकते ही सफर तय कर जाते हैं, मछलों की मानिंद। ये उनकी हेडलाइट्स हैं। वो विजन देखंडे, एक हाई स्पीड रथ आ रहा है, जिगजैग करता है सड़कों पे, पक्की सड़क पे बिजली की तरह सफर तय करता हुआ। और वे खंडे इसके ऊपर मशलें लगी हैं। वो मशलें दर हकीकत उस लैंड क्रूजर के हेडलाइट्स हैं। लेकिन इसने ना तो हेडलाइट्स आज तक देखी थी, ना इसने लैंड क्रूजर देखी थी, ना इस मशीनरी का नाम क्या ये भी नहीं जानता। ये जानता था कि हाँ, हमारे जमाने में जो सबसे हाई स्पीड है वो रात भागता है। इसलिए जब वो इस विजन को देखता लिखता कहता आखिर जमाना में जब खुदावंद के आने का वक्त होगा, उसका निशान ये होगा कि साइंस इस कदर तरक्की कर जाएगी कि रथ भी लाइट की स्पीड से सड़कों पे ट्रेवल करेंगे। एंड दैट इज कार्स। ये लैंड क्रूजर्स हैं, ये हाई स्पीड कार्स हैं। उस दौर में, उस वक्त में इन बातों को समझने से इंसान का असर था। ये इंसान के लिए समझना मुश्किल था, क्योंकि आखिर जमाना तक के लिए इन किताबों को सील करके बंद कर दिया गया। जब आखिर जमाना के लोग आए, इन किताबों को खोलने, समझे, मुशाहिदा करें और जान जाए यस दिस इज द एंड टाइम। और हम चर्च के लोग अब आखिर जमाना में आखिरी वक्त की दहाइयों पे खड़े हैं। इससे पहले कि दुनिया ये वक्त देखे, ये नौबत देखे, दुनिया के हालात बिगड़े और माहौल बदले, पलक झपकते ये चर्च इस जहान को आखिरी अलविदा कहकर बादलों के पार अपने दुल्हा के साथ जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आइए खुदावंद के लिए जोर। सवाल ये था, तेरे आने का निशान क्या है? What are the signs? तो चर्च के लिए मैसेज ये है, अरे जब तुम अपने गिरदोनवा में इस तरह की बातों को सुनो, इस तरह के कामों को देखो, जब साइंस रोज बरोज कमाल को पहुंचती जाती है, गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। दिस इज द साइन कि आज नहीं तो कल, पल दो पल के अंदर कभी भी ये चर्च यहाँ न रहेगा, बल्कि चर्च का मुकाम बदलने वाला है। हालेलुया। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों और आज हम इस बात का मुशाहिदा करें, मैं कहां पे खड़ा हूं, क्या मैं तैयार हूं? Am I ready? Am I ready? Am I ready? क्या मैं तैयार हूं? कोई जुबान खामोश